औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear friends, I welcome you all in today's program, that is Academic Excellent Award Program. I would like to begin this program with the recitation of the Quran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. My dear friends and students, this program is organized by Students Islamic Organization Basokalyan Unit. It has been being conducted for the long past many years. This program is especially for the students and for their results. Once they get the result, and those who have got good excellent marks, and they have been appreciated and they have been inspired by Students Islamic Organization. Let me briefly tell you about the introduction of SIO. Students Islamic Organization, this is exclusively students' body which works for the welfare and benefit for the students. The mission of SIO, Students Islamic Organization, is to prepare the students and youth for the reconstruction of the society under the divine guidance. So many of the students from the colleges across India have been attached with this organization, and they have become the part, and they have achieved marvelous results in their academic. So I also request all the students out there to be the part of this organization and get an excellent award in your future career. SIO has been working for the benefits and welfare of the students, and it conducts various programs like career counseling program, and it also helps students to know about the career and what are the ways in which they can get excellent. So according to their interest, SIO always been the guidance for them. Now to continue this program, I would like to call our speaker of the day, that is Brother Altaf Amjad, who is a ex-ZSC member of SIO Karnataka. He is also a well-known personality with regards to education. He is also a CRP in Basokalyan. I invite him to deliver a speech on the topic opportunities in higher education. I want my students to note down important points with regards to higher education. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Rasulil Ameen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin wa ba'd. SIO बसोकल्याण की जानिब से टॉपर्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें सबसे पहले आप तमाम का इस्तकबाल है, और साथ ही साथ ज़िम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अहम प्रोग्राम को आपने कंडक्ट किया है। इस तरह से अभी कन्वीनर साहब ने ऐलान किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन हायर एजुकेशन के उन्वान पर मुझे इस वक्त कुछ बात रखनी है आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए कि हायर स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम 18 से 23 इयर्स की एज के लोगों की बात है ये असल में, और इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेट या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर हम देखेंगे भारत का, तो 2017-18 में ये 25% था, जबकि 2018-19 में ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बस 28% कुछ हुआ है। और टारगेट तो ये था कि मज़ीद 2020 तक इसमें 30% का इजाफा टारगेट रहा है। और देखा जाए कि जिस देश की हम बात कर रहे हैं, भारत, हिंदुस्तान, चाइना और यूएस के बाद तीसरा बड़ा लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम अपने पास रखता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3.66 करोड़ 2017-18 में ये स्टूडेंट्स की तादाद रही है। और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कि वो 659 यूनिवर्सिटीज़ थे जो आगे चल के
इसमें इजाफा हुआ और हायर स्टडीज़ के लिए जो कॉलेजेस की बात है वो 33,023 की तादाद है 2011-12 में। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि 2018-19 में 8 लाख स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ भी हम देखेंगे तो 993 2018-19 में यूनिवर्सिटीज़ रहे हैं। और अगर हम इसको ब्रेकअप करेंगे स्टूडेंट्स को कि 13.88 लाख स्टूडेंट्स जो थे उसमें से हम देखते हैं कि 5.2% स्टूडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और 36.3% ओबीसी को बिलोंग करते हैं, फिर 2.3% फॉर अदर क्लासेस। तो इस तरह से ये ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हायर एजुकेशन में जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं और साथ ही साथ उसके साथ चैलेंजेस भी हम देखते हैं। अब चूंकि मेरे सामने इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी पीयूसी या 10th के बाद की बात करने वाले हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है और हायर स्टडीज़ वो कैसे करें। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें रखूँ कि जिसके ज़रिए से आप अपनी हायर स्टडीज़ और हायर एजुकेशन का सफ़र अच्छी तरीके से तय कर सकें। देखिए, जैसे ही रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं और परसेंटेज वगैरह का डिक्लेरेशन हो जाता है तो फ़ौरन जो पेरेंट्स और बच्चों के जहन में सवाल होता है कि आगे क्या करें, हायर स्टडीज़ को कैसे जाएं, कहाँ कौन से कॉलेजेस में क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले देखिए कि आप अपना गोल और अपना करियर बहुत क्लियरली डिसाइड कर लें, बहुत अच्छी तरीके से आप डिसाइड कर लें। इसमें यहाँ मैं पेरेंट्स अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी ख्वाहिशें, अपने डिज़ायर्स अपने बच्चों पर न डालें। आप ये ना कहें कि मैं डॉक्टर मैं नहीं बन सका तो इसलिए बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, या अगर माँ कहती है कि बेटे तुम्हारे आंटी के लड़के ने डॉक्टरी कर ली है तो मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बन जाओ। या फिर पेरेंट्स मिलकर ये कहें कि दादा की ख्वाहिश बहुत दिनों से थी कि बेटा हमारा इंजीनियर बने, तो इस लिहाज से आप इंजीनियरिंग कीजिए। तो ये ऐसे सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है। और यहाँ ये भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना कि जिस तरह से एक तरह का रैट रेस होता है हमारे पास कि एक दो लोगों ने ये कर लिया तो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, तो इसको भी आप अवॉइड कर लें। आप देखेंगे आपके लिए सूटेबल करियर क्या है, आपके लिए आप किस काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए, तो इसको आप जहन में रखें। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं मैं आपको ये भी कहूँगा कि हायर एजुकेशन एक बहुत अच्छी जर्नी भी होता है, बहुत मेमोरेबल जर्नी होता है। और जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आपको नई नई फील्ड्स, नए दुनिया में होने वाले चेंजेस और दुनिया में आने वाले ट्रेंड्स को आप देखते रहते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा रुक कर ये अहम फैसला करना होता है कि आप बेहतर से बेहतर गोल की तरफ आगे बढ़ें। और इस सिलसिले में एक और जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि बहुत मौक़ों पर हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में कन्फ्यूजन होता है कि क्या मुझे रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे, या वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं अवेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसका भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना करियर, अपना फील्ड चूज़ कर लेते हैं तो इसको आप आगे बढ़ते हुए इसको आप अडॉप्ट करें और उसको परसीव करें, उसको चेस करें और एक डिटरमाइन होकर बहुत फर्म इरादे के साथ, बहुत ही एक अच्छे इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ इसको पीछे लग जाएं। ये सही है कि आपको हो सकता है कि माइग्रेट करना पड़े, आप अपना गांव, अपना शहर, हो सकता है अपना स्टेट भी छोड़कर जाना पड़ता है आपको। तो ऐसे मौक़ों पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको कोप अप करने की ज़रूरत है, आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है, आपको इसके साथ चलते एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है।
साथ ही साथ आपके कुछ अलग से चैलेंजेस रहेंगे, उसको भी आप ओवरकम करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये सारी चीज़ों का आप स्टडी पहले से कर लें और इस सिलसिले में सीनियर से कांटेक्ट कर लें, एजुकेशन काउंसलर से बात कर लें। जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन आप गूगल कर लें और मालूम कर लें, या अगर वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड रहते हैं तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके वहाँ के हालात मालूम कर लें और वहाँ की फैकल्टी के बारे में मालूम कर लें, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम कर लें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में मालूम कर लें। तो इस तरीके से आप वहाँ के चीज़ों का पहले का क़ब्ल वक्त वेल इन एडवांस जो है आप इंफॉर्मेशन लेकर आप इस अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर जहाँ हम ये बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो यस देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे फील्ड्स में हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप यूजी प्रोग्राम सोच रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप ज़रूर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचें। अगर आप इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं तो आप आईआईटीज़ का सोचें। अगर आप मैनेजमेंट में आगे जाना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सोचें। अगर आप मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ जाएं। और अगर साइंस और रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ सोचें। फिर अगर आप कम से कम एनआईटीज़ के बारे में सोचें। तो बहुत सारे इस तरह के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होते हैं जहां आपकी एंट्री बहुत आसानी होती है, लेकिन हमें लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ काउंसलिंग, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से यहाँ ये सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। एट दिस मोमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इंडियन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स को आप ज़रूर सोचें, उनके बारे में मालूमात हासिल करें। वक्त नहीं है वरना मैं बता देता कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। फिर हायर एजुकेशन के लिए जिस तरह से हम बात करते हैं कि बहुत सारी जगह पे आपको स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप ज़रूर अवेल करें अपने हायर स्टडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत मरतबा एजुकेशनल लोन्स भी बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी अगर आपको ज़रूरत है तो अवेल कर लें। बहुत सारे एनजीओज़ आपको पर्टिकुलर फील्ड्स में आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। लाइक अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आप आगे जाना चाहते हैं, या फिर जर्नलिज्म में आगे जाना चाहते हैं, या लॉ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए कि बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो आप इसको अप्रोच होकर वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। खुद जमात इस्लामी हिंद की तरफ से करियर फॉर सोशल चेंज के नाम से इस रेस्पेक्टिव फील्ड में लॉ, जर्नलिज्म, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मदद भी दी जाएगी। साथ में मैं आपको एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि हायर स्टडीज़ अगरचे के थोड़ा सा जर्नी थोड़ा मुश्किल होगी, हो सकता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बिटर हैं, लेकिन इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीटर हैं। तो इसलिए आप हायर स्टडीज़ में चैलेंज को एक चैलेंज समझें, अफ्रेड ना हो, पैनिक ना हो, और अपने पेरेंट्स, अपने कलीग्स, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर डिस्कस करें, खुल के डिस्कस करें, ओपनली डिस्कस करें, और आपके मन में, आपके दिल में जो भी सवालात आते हैं उसको फ्रीली आप पूछें, इंक्वायरी करें, इंक्वायरी बेस्ड आप इंफॉर्मेशन लें और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर आगे बढ़ें। और जिस तरह से मैंने कहा कि इंडिया एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और ये इस वक्त एजुकेशन में एक सुपर पावर ऑफ नॉलेज बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है। तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं, रिसर्च की तरफ भी जाएं। अगर मैं आपको ये भी बताऊं, जो आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ से आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। 10 लाख के लगभग स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो आप हार्वर्ड भी सोचें, ऑक्सफोर्ड भी सोचें, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना सोचें। और ऐसे बहुत सारे हमारे इदारे हैं खुद भारत में भी, कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है, या फिर एक बड़ा गोल रखें, बड़ा एम रखें, पेरेंट्स का भी सपोर्ट करें, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और कम्युनिटी से भी सपोर्ट लें, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट लें,
बहुत सारे हमारे पास स्पॉन्सर हैं, वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। NGOs हैं, उनको भी आप अप्रोच हो। शर्त ये है कि आप तैयार हों तो सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छा गोल रखकर हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ें। मैं आखिर में हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले सारे टॉपर्स को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी SIO की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कोविड में इस तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट किया है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन टॉपर्स को वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में अल्लाह ताला उन्हें मौक़े अता फरमाए और उनको इल्म की तरक्की अता फरमाए, सरबुलंदी अता फरमाए और पूरे मुल्क के लिए, भारत के लिए और पूरे मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उन एक अच्छे और बेहतर लोग ये साबित हों। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। I thank Brother Altaf Amjad for giving his valuable inputs in higher education, which would really help to our students. Our next speaker is Brother Asim Jawad. He is a chemist and he is also State Joint Secretary. His topic is moral values in education system, which I feel is the need of an hour. I invite him to deliver on the topic moral values in education system. May the peace and blessings of the Almighty, the Creator, be upon all of us. The topic that I would be speaking about is moral education or moral values in education system. Education has to be or had to be a process that makes a human, a person complete, makes our life meaningful. But on the contrary, education in our society, in our education system, has been minimized to just gaining knowledge. In today's society, the current education system is framed in such a way that education only means literacy, to be able to read and write. When our education system inculcates or conveys it to the student that only to read, write, gain knowledge in a specific subject, and then later on specialize in some topic or a subject is education, the whole meaning of education is lost. Today, when I speak about moral education or moral values in our education system, let us first understand what moral values are. Moral values could be simplified and called social values, something that helps us live in a society, in a plural society. Moral values help a student distinguish between what is right and what is wrong. After having known what is right and what is wrong, moving ahead to support the right, to stop what is wrong, are basically one's ethics. The moral values that are inculcated in a student form the base of our tomorrow's society. If in today's education system a student is enrolled in any of our institutions and
completes his or her education, later on, that student becomes the citizen of our society, a part of our society. In short, when today's student is going to be the citizen of tomorrow's society, what we give to the student, what the student learns from his school, from his college, from his education is basically what he is going to apply later on in his life. And that is how he is going to construct the society either in a good or a bad way. To incorporate moral values in our education system, probably our current education system hasn't dealt with it in a complete sense. Moral values today are taught to a student in the form of a subject, wherein classes are taken in a week, either on hourly or a 2-hourly basis. Values are conveyed to the students using chapters, which the students basically by heart the definitions and then later on spill it out in their answer sheets. It is astonishing, surprising for us to see that many of the students who write their moral values or moral education examinations, a few of them, a very few, tend to copy from their friends, while in their writing about honesty, truthfulness, and yet they see that what they are writing in the paper and what they are doing in their life in actual is different, but they fail to differentiate between those two, though truthfulness is basically telling the truth both in words and action, wherein a student is copying, which is basically lying or false, and yet he is writing about truthfulness. This is what our education system is giving to the students. I do not say that all students copy, but the student who is copying either in his test or examination is basically not following it in practice what he is learning through the classes of moral science, moral values, or moral education. When I say moral values, we could simplify or elaborate moral values, saying them to be human values. Values that make a student a human. Be it truthfulness, honesty, giving respect to others, be it rich or the poor, be it elder or the younger. To forgive, to cooperate, to be able to do justice. All of this are basically, when inculcated in a student, when he learns to implement it in his life, that is when we are going to have law-abiding citizens in tomorrow's society. By giving education, bookish education to the students and expecting them to be law-abiding citizens in tomorrow's society is a complete failure of our current education system. To be able to make the right moral choice in the worst of the circumstances is the best that we can give to our students. In today's society, to be specific, in today's Indian society, what do we see when a person meets with an accident? There are many
who capture videos, click photos to be able to be the first ones to share it on social media. But they care very, very less to help that person who has met with an accident, to make sure that he reaches the hospital in the right time. This is the moral education or the wrong moral choices that we are letting the students, the people of today's society take. To change this, we need to incorporate moral values in our education system, not as a subject but as a value. When students are able to reason out what is right and what is wrong, when they study history and read about different people who have been in the past, learn from their mistakes, and reading through history, they are able to judge or come to conclusions of what a specific event or an act was right or the wrong. Based on those circumstances is what we have to be able to give to our students. It is conveyed to our students through our teachers, through us, through our parents, that we need to earn money through hard work. But when that same student becomes part of our system, our public administrative systems, becomes part of our society, he learns to give bribe. He takes part in corruption, be it giving or taking. He breaks traffic signals. All of this happens because hard work is not defined. When we teachers, when we students are able to communicate to each other what these moral values are in specific and elaborate them, expand on them, so that students are able to relate between what is in the book and what happens in their real life, then only we will be able to make a better society for all of us to live in. Lastly, in our education system, moral values or the depth of having known a few moral values from the bookish knowledge are judged based on marks and not on actions. If our education system comes up with an alternative evaluation system for specifically moral values, wherein teachers who deal with our students on a day-to-day basis are able to grade the student or motivate the student by what they see in action, then only we are going to have a better society. Then only we will be able to reconstruct our society under the sphere of these moral values, wherein each citizen, each person in our tomorrow's society is judged, lives by word and in action on the basis of simple principles of truth and justice in all matters. So let us think over this on how moral values in our education system is going to affect the society of tomorrow. Thank you. I thank Brother Asim Jawad, State Joint Secretary, SIO Karnataka, for his remarkable, valuable inputs on the topic.
Now I would like to call our chief guest of the program, respected Nihal Kidiyur, State President SIO Karnataka. He would deliver his speech on the role of students in post-COVID-19. I request him to come and deliver his speech on the topic role of students post-COVID-19. अस्सलाम वालेकुम। बसों कल्याण प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के तमाम पार्टिसिपेंट को मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स जो है ये 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में लेके आए हैं सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनकी टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी को कि उन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स से जो है आपने बहुत एक अच्छा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है कि आप जो है डिस्टिंक्शन और जो है 90-95% मार्क्स जो लेके आए हैं वो आपकी जो है मेहनत है, डेडिकेशन है, आपका विलिंगनेस है, आपका विल पावर है कि पूरे साल में आपने उसको मेहनत किया। आपने एक गोल रखा कि मुझे जो है इन सब्जेक्ट्स में जो है उबूर हासिल करना है, तो इसमें टॉप करना है और इसके लिए आपने एक प्लान बनाया, इसके लिए आपने मेहनत किया, आप एग्ज़ाम में गए। हम जानते हैं कि आज के जो हालात है कोविड की वजह से इस सबको जो है मद्देनजर रखते हुए भी आप आगे गए और जो है आप कामयाब हो के जो है विलिंग लाइन से दूसरी तरफ आए हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को हम जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मैं जो है SIO बसों कल्याण का भी जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया कि एक बहुत ही एक अहम मौजू पे जिस पर आज जो है सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट कोविड-19 के मतलब तलबा नौजवानों का क्या रोल है कोविड-19 के पस मंजर में। आपने जो है एक ये जो प्रोग्राम ऑनलाइन के जरिए से हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो हायर एजुकेशन के ताल्लुक से, आला तालीम के ताल्लुक से हमें कैसे पहल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस ताल्लुक से कुछ बातें, मुफीद बातें आपके सामने आई होंगी। उसके बाद जो है मॉरल वैल्यूज, अक़दार वैल्यूज के बारे में एक सेशन आपके पास जो है हमारे भाई ने रखा होगा जिसमें जो है वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है पूरे एजुकेशन सिस्टम पे और हमारे जो है अपब्रिंगिंग में और हमारे पूरे जो है तालीमी निसाब में, तालीमी निज़ाम में और एक कल बेहतर इंसान बनने में वैल्यूज का, अक़दार का इंपॉर्टेंस कितना है, इस ताल्लुक से भी कुछ आपके सामने गुफ्तगू रखी होगी। अब मैं जिस मौजू के ताल्लुक से, चूंकि हम लोग जो है फिजिकली एक दूसरे के साथ तो नहीं बैठ सकते या प्रोग्राम के बाद जो है गुफ्तगू या चाय तो नहीं पी सकते, लेकिन ऑनलाइन के जरिए से रोल ऑफ स्टूडेंट्स के मतलब तलबाओं का रोल क्या होना चाहिए पोस्ट कोविड-19, ये जो वबा हमारे सामने पूरी दुनिया में, आप चाहे बसवा कल्याण में हो, बेंगलुरु में हो या चाहे वाशिंगटन में हो या मॉस्को में हो या लंदन में हो, सभी जो है इंसानियत ये जो वबा है, ये जो पैंडेमिक है, इससे गुजर रही है। तो इस माहौल में जो है हमें जो है सोचना है कि आज के जो तलबा नौजवान हैं, आज के जो यूथ हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर आप स्टूडेंट्स जो है अपने एग्जाम्स को जो है एस करते हुए एग्जाम्स को जो बहुत ही अच्छा आला नंबर लेके आए, उनकी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए कि कोविड-19 है या जो एजुकेशन का जो पर्पस है कि इंसान को बनाए, फर्द को निखारे और समाज के फर्द को तराशे और समाज के लिए वो एक एसेट बने, समाज के लिए वो ऐसा एक जरिया बने, ऐसा एक जो है सोर्स बने जिससे सोसाइटी का जो है वेलबींग डिफाइंड हो। आप स्टूडेंट्स कल जाके जो इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे जो है हम देखते हैं अपने अतराफ जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो गंदगी है या जो सोसाइटी में जो है रिच एंड पुअर का जो डिवाइड है, सोसाइटी में जो करप्शन है, सोसाइटी में जो गंदगी है, सोसाइटी में जो जिस तरह के जो है हमने जो बहुत सवालात देख रहे हैं उसको आप एड्रेस करेंगे करके ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का जो अगर आपके की पॉइंट ये है कि हम लोगों ने आपको जो है आइडेंटिफाई किया है कि आप सोसाइटी के चेंज मेकर्स हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सलाहियत है जो आपके मार्क्स जो है दिखाती हैं। मार्क्स कोई जो है एक अल्टीमेट सोर्स नहीं है कि आप जो अगर 90% अचीव कर लिए, 95% अचीव कर लिए कि आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक इंडिकेटर जरूर है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है, एबिलिटीज है, जिसको अगर आप टैप करेंगे, जिसको अगर आप निखारेंगे, संवारेंगे तो कल के दिन समाज में आप जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। आप सोसाइटी के लिए एसेट बन सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए जो है एक बहुत ही एक अच्छा एक इस तरह की इंसानियत पर्सनालिटी बन सकते हैं जो लोगों के लिए रोल मॉडल हो, सोसाइटी को आगे जाने वाला जो है आप जो बन सकते हैं। तो ये एक मंशा है, बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है जो SIO बसवा कल्याण ने जो है SIO कर्नाटक हो, SIO इंडिया हो, ये अपना जो 38 इयर्स का जर्नी है इसमें स्टूडेंट्स और एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही सोसाइटी के वो वाइटल एलिमेंट है। अगर वो सुधर जाएंगे, वो उनका डायरेक्शन सेट हो जाएगा
तो जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आएंगे, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सोसाइटी को अच्छा एक रहने का जगह बनाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसी का एक कड़ी जो है एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हमारा नुमाया खुसूसियत है कि अगर हम लोग फिजिकली मेल बैठ के आपके हॉल में नहीं बैठ सकते, शादी खाना में नहीं बैठ सकते, तो हम लोग मोबाइल के जरिए से, लैपटॉप के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से आप लोगों से कनेक्ट होंगे। तो वो उसका एक जो मैं ऐसे बसव कल्याण का भी जो मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सोचा कि ये पैंडेमिक में भी पैंडेमिक के बारे में बच्चों को बताए कि इसमें आपका रोल क्या होना चाहिए, आपका हायर एजुकेशन आप कैसा करें, आपके एजुकेशन में मॉरल वैल्यूज कैसा हो, उसके ताल्लुक से कुछ गौर फिक्र किए हैं। और जो भी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने भी बच्चों की इस तरह से तरबियत, इस तरह से उनका जो है पूरा एक तज़किया का खाका बनाया कि वो इस काबिल बन सके। तो आइए आज का जो टॉपिक है कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट पैंडेमिक, कि पैंडेमिक के बाद या पैंडेमिक से हम जो गुजर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, तो इस पे कुछ बातें हम करेंगे। चूंकि हमारे पास कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, हम लोग जो है ऑनलाइन की तरह से मिल रहे हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा जिसपे आप जो है गौर फिक्र आपको करना है, तो उससे जो है कुछ चीजें खुलेंगी। सबसे पहले जो बात मैं करना चाह रहा हूं, हमारे जो पूरी तालीमी निजाम है उसके ताल्लुक से हमें सोचना चाहिए। आज आप देखें कि पूरा जो डिबेट कोविड-19 एक पैंडोरा बॉक्स लोग कह रहे हैं कि जिस तरह कोविड आया तो पूरा पैंडोरा बॉक्स बंद था, तालीम के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे ही कोविड आया वो खुल गया बॉक्स। तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, या हेल्थ केयर का समस्या है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, या टेक्नोलॉजी की समस्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का तो आप अगर बात ही नहीं करेंगे, आप जो स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन क्या जॉब मिलने वाला है, आपके एजुकेशन का सिस्टम कैसा है वो डिफाइन करेगा। तो पैंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो लेकिन हमारा डिबेट क्या हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का इतना डिबेट हो रहा है कि जूम पे हम मीटिंग करेंगे, या गूगल मीट यूज करेंगे, या जो है वेबएक्स यूज करेंगे, या गूगल क्लासरूम यूज करेंगे। लेकिन ये एक हमारे लिए, इंसानियत के लिए हिंदुस्तान में जो है तालीम के ऊपर एक से बहस करने का एक मौका था कि तालीम क्या इंसान को बनाना का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखते हैं कि आज भी आप एक सिर्फ एग्जाम्पल लीजिए कि मेरा एक छोटा भाई है, उसको ऑनलाइन क्लास के जरिए से ये बताया जा रहा है कि एक ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करना है, या जो है अगर सोशियोलॉजी की क्लास है तो उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन हमारा तालीम जो है एक फर्द को, एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है रिश्तेदारों का जो है मौत हुआ है, वफात हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिजाइन नहीं है, या इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन नहीं किए हैं कि वो जो है ये यंग लोगों से कनेक्ट करें, एजुकेशन के जरिए उनको कॉन्फिडेंस आए, एजुकेशन के जरिए से वो जो है अपने आप पोटेंशियल को पहचाने और वो जो ओवरकम करें। ऐसा ना हो कि लोग डिप्रेशन में चले जाए। आज एजुकेशन होते हुए अगर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तालीम का निजाम होते हुए लोग जो है मायूसी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो पूरा एजुकेशन को हमें सोचने की जरूरत है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं जो है सिर्फ एक वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल या जो स्क्वायर की तक है, या हमें इंसान बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सवाल कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना डिबेट कर रहे हैं कि जूम जो है बसवा कल्याण तक पहुंच रहा है कि नहीं, बीदर तक पहुंच रहा है कि नहीं, लेकिन पूरा तालीम क्लासरूम में भी तालीम जो सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है, तो क्या वो हमें इंसान बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये पूरा तालीमी निजाम पे क्वेश्चन है जो मैं जो है आपके सामने रख रहा हूँ। क्या एजुकेशन से हम जो है अपना एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, सोसाइटी में कैसा जीना है। आज हम सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं मैं कि कोरोना का जिस तरह स्टार्ट हुआ, एक तबलीगी जमात के मरकज से जो है वहां पे बहुत कुछ लोग थे, उनको अफेक्टेड हो गए। जिस तरह से मीडिया रिस्पॉन्ड किया कि वो तबलीगी वायरस है, तबलीगी बॉम्ब है। अब रिसेंटली जो है मुंबई हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया कि उसको जो है अपने गवर्नमेंट फेलियर्स को छुपाने के लिए उनको एक स्केपगोट बनाया। क्या एक एजुकेटेड सोसाइटी में, एक ऐसे सोसाइटी में जहां तालीम में इस तरह से जो है धर्म के बुनियाद पर, रिलीजन के बुनियाद पर, मजहब के बुनियाद पर लोगों को बांटा जा रहा है ये पैंडेमिक के दौरान, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हमारा एजुकेशन सही मानों में हमें एजुकेट कर रहा है, सही माने में हमें तालीम दे रहा है, सही माने में हमें इंसान बना रहा है। ये आपके सामने मैं पहला सवाल उठा रहा हूं कि एजुकेशन के ताल्लुक से हमें रीथिंक करना है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी क्लासरूम में देखेंगे, या जो आप अपने माँ बाप के साथ देख रहे हो, तो आप जो चुनिंदा लोग जो टॉप किए हैं, आपने अपने जो है एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आए, तो आपको गौर फिक्र करना है क्या एजुकेशन सिर्फ हमें जो है कुछ सैलरी देगा, हमें कार दिलाएगा, या हमें अच्छा इंसान बनाएगा। ये सवाल है पहला।
दूसरा जो सवाल ये है कि जो एंजाइटी स्ट्रेस के बारे में मैंने बोला कि लोग स्ट्रेस में हैं, लोग जो है परेशान हैं, तो हमें देखना चाहिए कि क्या एजुकेशन ने हमें वो कैरेक्टर डेवलप करने का जो ये दिया, हमारे इंटेलिजेंस को क्या उसने अवेकन किया, हमारे जो सेंस ऑफ रिलीजियोसिटी जो बोलते हैं कि हमारे जो मजहबियत है उसको क्या जगा के एक अच्छा इंसान बनाया, हमारे अंदर मजहबियत को जगा के जो हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हिंदू को जो अच्छा हिंदू करना है, मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम करना है, और हिंदू मुस्लिम साथ रह के इस तरह से एजुकेशन हमें कर रहा है, और हमें जो है एक सेंसिबिलिटी वो दे रहा है कि नहीं, इस पे हमें जो सवाल उठाना है। तो अगर मैं आज के तनाजुर में एजुकेशन के ताल्लुक से जितना भी बोलूं कम पड़ेगा, लेकिन मेरा बड़ा सवाल एजुकेशन के ताल्लुक से, तालीम के सवाल से ये है कि क्या हमें वो इंसान बना रहा है कि नहीं, क्या हमें एक आला सिटीजन बना रहा है कि नहीं, क्या हमें एक अच्छा एक रोल मॉडल स्टूडेंट बना रहा है कि नहीं, एक माँ के लिए अच्छा बच्चा बना रहा है कि नहीं, एक टीचर के लिए अच्छा स्टूडेंट बना रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, वो एजुकेशन के ताल्लुक से देखना चाहिए। तो आगे मैं कुछ पॉइंट्स जो है रोल ऑफ एजुकेशन पोस्ट कोविड-19, आप जान रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे कि ऑनलाइन क्लास के बारे में, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में हम सुनते थे कि अमेरिका में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस होता है, डिस्टेंस क्लासेस होता है, और टीचर्स जो है जूम के जरिए से मतलब ऑनलाइन जरिए से एंगेज करते हैं, ये खुद हमें देखने का मौका मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एक फिनोमिना है, एक रियलिटी है, इसको हम कैसा नेविगेट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले एक चीज मैं बता के जो है वो अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा कि सोसाइटी में स्टूडेंट्स, कोविड हो या पोस्ट कोविड हो या नॉर्मल टाइम्स में भी, स्टूडेंट्स चेंज मेकर्स होते हैं, डेस्टिनी डिजाइनर्स होते हैं, तारीख को डिजाइन करने वाले होते हैं, वो जो सोसाइटी के हार्ट बीट होते हैं, वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का एजेंसी होता है। तो ये रोल हमेशा हमारा है, इस पे आपको जो है हमेशा से गामदन रहना है, हमेशा से आपका अंदर आप जो है उसको बचा के रखना है कि स्टूडेंट्स अगर ठान लेंगे, अगर हम जो है एजुकेशनली सोसाइटी को डेवलप करेंगे, हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब का एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। तो मतलब वो जो स्लोगन है कि जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, सही माने में तालीम हासिल कर नहीं करेंगे, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म का नजरिया नहीं बन सकते। तो रोल स्टूडेंट्स का बहुत अहम है। तो 5 पॉइंट्स में देख के जो है अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले जो है हमें एज ए स्टूडेंट्स हमें रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ट्रांसफॉर्म करना है। आज आप गूगल के जमाने में रह रहे हैं, आप जो है आपका स्लाइड बार को नेविगेट करेंगे या ओके गूगल बोलेंगे, इंडिया का कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, हर चीज जो है गूगल के पास मौजूद है। आपके टॉप आपने 99% लिया तो आपका मोबाइल 100% लेगा। तो आपको रोड लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना है। सिर्फ आप जो है बाय हार्ट करते जाएंगे और एग्जाम पेपर में जो है उसमें उल्टी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्यूचर के स्टूडेंट्स को पोस्ट कोविड-19 अगर आपको अच्छा समाज बनाना है तो आपको रोड लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है जंप करना है। क्यों? आपको मैंने बताया कि गूगल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आपके पास नॉलेज है, उसको लेके आप कैसा जो है सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। आपके पास जो नॉलेज है कि बसवा कल्याण में जो है हमारे पास जो है 10% पॉवर्टी फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो वो डेटा आपको रहने से क्या कुछ फायदा नहीं होगा। वो 10% पुअर आदमी है, उनकी पॉवर्टी के लिए हम जो हमारे पास इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रिच लोग हैं, उनसे कैसा एक सिस्टम डिजाइन करेंगे कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी पैंडेमिक के दौर है, आपके पास माइग्रेंट लेबर्स होंगे जिसके पास लाइवलीहुड नहीं होगा। जो अच्छे लोग हैं, आप जो नीडी लोग हैं, उनके दरमियान आप एक जो है चैनल बना दीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो पहला है रोड लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दूसरा हमेशा का फॉर्मूला है एक्सेलेंस। आप जो भी सीखे उसमें एक्सेलेंट बने। आज आपके पास सिर्फ क्लासरूम बसवा कल्याण बीदर का दायरा नहीं है, आज आपका पूरा जो है दुनिया आपका जो यूनिवर्सिटी है। आप हार्वर्ड से सीखिए, आप मैसेच्यूसेट्स से सीखिए, आप लंदन, मतलब हर दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए ऑनलाइन जरिए से। लेकिन आपको एक्सेल करना, एक्सेलेंस आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आप एक्सपर्ट बने तभी जो है आप सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि आज गरीबी है, इलिटरेसी है, एनवायरमेंट का इतना बड़ा कैटास्ट्रोफिक चैलेंज है हमारे सामने कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है। तो इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? हम कैसा जो है प्लास्टिक को रिड्यूस करते हुए ऐसा अल्टरनेट बनाएंगे कि वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। मैं जब पीयू में था तो हमारे एक साइंटिस्ट आए तो कह रहे थे कि हम जब भी सड़क बनाते हैं तो हर 6 महीने का गड्ढा होता है। हमारे स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा केमिकल डिस्कवर करे जो वो गड्ढे में डाले तो सही हो जाए। ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई मैजिक की बात नहीं करे, लेकिन हमें सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए सोल्यूशन ढूंढना है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 36 साल से ही कह रहा है कि सोसाइटी में जो है क्रिएटिव कैंपस बनाएंगे हम कैंपस को,
जहां सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें करना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हम कंटेस्ट करें। आज आप सोसाइटी को देखेंगे तो आपको ये पैसा का कोई बैरियर नहीं है। आप जानते हैं एयरबीएनबी करके एक सर्विस है जिसमें उसके पास, ओनर के पास कोई एक रूम नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल उसके पास है। उबर का एग्जांपल है, उबर के पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उबर जो है रेंट बेसिस पर हायर करके अपना जो है जो भी ड्राइवर है उनको पूल करके सर्विस देता है। इसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो उनके, मतलब अली बाबा का एग्जांपल है कि उसमें, या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, अमेजोन का एग्जांपल है कि आपको जो है पैसे की, आपके पास जो है एक्सपीरियंस की ऐसा कोई हर्डल नहीं है, आपके पास स्किल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आपके पास टेम्पर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ये है। चौथा जो है, लास्ट पॉइंट ये कर रहा हूं मैं कि युवल नोआ हरारी करके एक राइटर है, वो कहते हैं कि आजकल जो है आप सुने होंगे कि आपके मोबाइल को हैक किया जाता है, आपके कंप्यूटर को हैक किया जाता है। वो कहते हैं कि इंसानों को हैक किया जाता है, हैकेबल ह्यूमंस के टेक्नोलॉजी के जरिए से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो इंसानों को हैक किया जाता है। तो ऐसे सोसाइटी में जब इंसानों को हैक किया जाता है तो हमें इंसानियत को डिस्कवर करना है। आज का जो एजुकेशन का तीन जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कहा जाता है कि हम जो मॉडर्न हो गए हैं, हम रिसोर्सेज को ओन करने वाले हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा अस्पताल हो, हमारे जो फैसिलिटीज हो, उसने कोविड-19 में उसको हरा के बताया कि इंसान का पोजीशन सोसाइटी में क्या है। हमें जो है उससे विनम्रता का, हमें जो उससे हम्बलनेस का एक एटीट्यूड डेवलप करना है। दूसरा जो हमने डेवलप किया कि हमने बात करने की सलाहियत सीख ली, हम चांद पे जा रहे हैं, एलॉन मस्क करेगा मार्स पे जाएंगे, लेकिन हमारे इंटरनल जो चीजें हैं, डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, वो जो है हमें कहीं ना कहीं उजागर करना है, हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा ये है कि आज के कोविड की सिचुएशन होना तो ये चाहिए क्या, हमारे पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होकर लोगों को स्ट्रेंथ है। अगर कोई गुजर गया, कोई उनके घर में लॉस है, तो पूरा एक कलेक्टिव सेंस को टैप करें, हिंदुस्तान के स्पिरिट को टैप करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि पोस्ट कोविड-19 हमें जो है इंसान को जो है खोखला बनाया जा रहा है, इंसान को एक मशीन बनाया जा रहा है। आजकल जब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि मशीन्स आर बिकमिंग इंटेलिजेंट, मशीन्स आर बिकमिंग ह्यूमन। मशीन पढ़ाई कर रहा है, ह्यूमंस आर बिकमिंग रॉबोट, कि सारा दिन मोबाइल में, लैपटॉप में, इंस्टाग्राम में लाइक कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सोचना है कि मशीन इंटेलिजेंट बन रहा है, ह्यूमन रोबोट बन रहा है। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। आज अगर टेक्स्ट बुक से ज्यादा हम फेसबुक पढ़ रहे हैं तो इस पे हमें गौर फिक्र करना है। और फाइनली एजुकेशन का जो पूरा एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि हम अपने आप को समझे, अपने फैमिली को समझे, समाज को समझे, हम कंट्रीब्यूट करने वाले। तो रोल ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट कोविड-19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अहम होने वाला है। ये जो है आने वाले 500 साल 400 साल को डिफाइन करेगा कि हम कैसे अडैप्ट करते हैं, एजुकेशन को कैसे इंक्लूसिव करते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग टाइम्स है, लेकिन चैलेंजिंग टाइम्स ही स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। पेंसिलिन का डिस्कवरी हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो, या बहुत सारे जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, वो वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, इस तरह के पैनिक के हालात में, इस तरह के चैलेंजिंग हालात में होता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी पीडीसी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के विनर्स हैं, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो मेरे पॉइंट्स गिनवाए हैं कि रोड लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जाए, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़िए। ह्यूमन बीइंग का जो इनर टेंडेंसी है वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को क्रिएशन को पहचाने। आज हम देखते हैं कंप्यूटर जो स्क्रीन देखने बंद है कि हम आसमान को नहीं देखते, जमीन को नहीं देखते, चरण को नहीं देखते, हमारे पेड़ों को नहीं देखते। तो हमें अपने आप को डिस्कवर करें। तो रोल ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। तो मैं ये वीडियो के जरिए से, ये प्रेसिडेंशियल स्पीच के जरिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स अपना रोल पहचानिए, अपना जो मनसब पहचानिए। आपने 10th में 12th में टॉप किया होगा, लेकिन ये आपका सिर्फ बिगिनिंग है। आपको जिंदगी में टॉप करना है। जिंदगी में टॉप करने के लिए लोगों के लिए आप जो है एक खैर का बाइस बनना है। एक कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, करके ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। तो इसका मतलब सिर्फ आप 5-10 रुपए किसी गरीब को दिए नहीं है, आप टेक्नोलॉजी दे, सिविलाइजेशन दे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। आप ये डिसाइड करें कि बसवा कल्याण की जितने प्रॉब्लम्स है, चाहे गरीबी हो, इलिटरेसी हो, हाइजीन की समस्या हो, लोगों का जो मेंटल हेल्थ का समस्या, उसके लिए हम कंटेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम वो जिंदगी का अपना मकसद बनाएंगे। तभी जो है हम कामयाब हो सकते हैं, तभी ये जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फिर एक बार इससे बसवा कल्याण के जिम्मेदारों का भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुझे जो है ऐसा मौका दिया कि ये ऑनलाइन पैंडेमिक के माहौल में भी हम कुछ इस पे गुफ्तगू करें। और एक बार जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन विन किए हैं और उनके पेरेंट्स को भी, और जो भी मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे जो 6 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे जो पीयूसी 10th के सभी विनर्स हैं,
सभी ने जिंदगी से गुजर के जो है आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और समाज को अगर आप समझेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, सोसाइटी की खिदमत करेंगे, तब कामयाब हो सकते हैं। रूमी हमेशा कहते थे कि yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I am wise, I am changing myself. के मैं कल शातिर था, दुनिया बदलने चला था, दुनिया को बदलना है, लेकिन बदलाव हमारे से शुरू होता है। तो हम अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, खुद ही में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तो एजुकेशन हमें वो एनेबल करे करके दुआ करते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। I thank our chief guest, Brother Nihal Kidiyur, for giving his valuable time and talking about the role of the students in post-COVID-19. And after this, I am going to hand over this mic to Brother Wasim Khan, who will announce the results of the topper. Now this is a most awaited moment for the students, this program especially which has been conducted for the students to hand over them the award for their results. So I request Brother Wasim Khan to continue this program. Thank you. Assalamu alaikum, good evening. Thank you guys to let me announce the toppers name. First of all, I will congratulate all the city toppers from different streams, and I will congratulate all the toppers from their different institutions, from the different streams. Now I would glad to announce the first of all the city toppers names. The city topper, first city topper from the arts stream is Abhishek, son of Sanju Kumar, who has scored 575 marks from SSKB College. I congratulate him. Then next is first city topper from commerce stream. He is Prashant, son of Manik, who has scored 541 marks, and he is from Diamond PU College. Next city topper from science stream is Anil, son of Vinod, who has scored 571 marks, and he is from Diamond PU College. I congratulate them all. And so next I will display the toppers name from different institution and from different streams, and simultaneously I will announce their names. From IICA PU College in arts stream, the first topper is Taisin Begum, who has secured 87.5%, and second topper is Ruxana Fatima, who has secured 85%. And from commerce stream, first topper is Sheikh Akhtar Ali, who has secured 89.5%. Second topper is Muhammad Suhail, who has secured 82.5%. Next, from next college, it is Islamia PU College. From arts stream, first topper is Nuruz Sabah, who has scored 73.5%. Second topper is Ayman Sana, who has scored 63.83%. Next college is SSKB PU College. From arts stream, first topper is Abhishek, who has scored 95.83%. Second topper is Vaishnavi, who has scored 94.83%. From commerce stream, first topper is Appanna with 74%, Arun Kumar with same 74%. From science stream, first topper is Siddhanna 59.5%. Second topper is Praveen with 59%. From Komalatai Girls PU College and from science stream, first topper is Asha with 88.16%. Second topper is Priya with 83%. From Sankalp PU College, first topper is Chandrakala with 91.5%. Second topper is Ruchika with 88.5%. Next college, it is Gausia Composite PU College. From arts stream, first topper is Sabah Anjum with 71%. Second topper is Shaista Begum with 60.16%. From science stream, first topper is Asma Begum with 66.16%. Second topper is Sayyada Sabah with 53.5%. From Dr. Ambedkar PU College and from arts stream, first topper is Arati with 89.5%. Second topper is Ritubai with 85.84%. And from commerce stream, Shweta with 79.17%. Godavari with 78.17%. From Diamond PU College, from commerce stream, first topper is Prashant with 90.16%.
Second topper is Sonali with 87.66%. And from science stream, first topper is Anil with 95.16%. Second topper is Sushma with 93.86%. From Shaheen PU College, first topper is Shifa Sawez with 91.83%. Second topper is Mohammad Mubashir Ahmad with 90%. From Nilambika PU College, from arts stream, first topper Radhika with 87.66%. Second topper Maya with 85.83%. And from commerce stream, first topper is Mai Jabin with 87.66%. From Ideal PU College and from commerce stream, first topper is Mohammad Mujtahid with 88.33%. Second topper is Rubina B with 84.33%. And from science stream, first topper is Sakina Fatima with 89.83%. Second topper Maliha Tahniyat with 89.66%. And from Crescent PU College, first topper is Sayyid Ibadullah with 92.66%. Second topper is Midhat Tasneem with 90.83%. From Allam Prabhu PU College and from science stream, first topper is Shweta with 83.5%. Second topper is Shubham Giri with 81%. From Punyakoti Independent PU College, first topper from arts stream is Bhagyashri with 94.33% and second topper is Nandini with 92.16%. And from commerce stream, first topper is Nandini with 89.16%. Second topper is Aruna with 85.16%. And from government PU College, first topper from arts stream is Nivarti with 75.83%. Second topper from arts is Hari Om with 47.5%. And from commerce stream, first topper is Raja Ram with 63.66%. And second topper is Karan with 53%. And from science stream, first topper is Anirudh with 69%. Second topper is Tippanna with 60.5%. Now from Basaveshwar PU College, first topper from arts stream is Ravi with 92.16%. Second topper is Bhagyashri with 90.66%. From commerce stream, first topper is Arati with 86.83%. Second topper is Pallavi with 85.83%. From science stream, first topper is Rajni with 78.66% and second topper is Pratiksha with 74.5%. I thank Brother Wasim Ahmed for presenting the awards to the toppers. Once again, I congratulate to all the toppers for their remarkable achievement in education. Now, moving towards the conclusion, I would like to invite Brother Sheikh Mudassir, President SIO Basokalyan Unit, to conclude this program with vote of thanks. I invite Brother Sheikh Mudassir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं जो अपने इम्तिहानात में बेहतरीन नतायज से कामयाब हुए हैं और साथ में मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि हमें इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाए और साथ में मैं ये ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह विदिन 1 वीक तमाम स्टूडेंट्स के घरों तक प्राइजेस पहुंचाया जाएगा। और आखिर में मैं तमाम स्टूडेंट्स का शुक्र अदा करता हूं कि वो अपना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शरीक रहे और साथ में हमारे स्पीकर्स का भी शुक्र अदा करता हूं कि वो अपना कीमती औकात निकाल कर अपने ज़र्रीन ख़यालात से हमें नवाजा। और साथ में हमारे SIO की टीम ऑर्गेनाइज़र्स ब्रदर एजाज़ अहमद, वसीम अहमद ख़ान का भी शुक्र अदा करता हूं कि इसको भरपूर तरीक़े से प्रोग्राम कामयाब बनाने में हमारा ताउन करे। और साथ में मीडिया टीम ब्रदर रऊफ़ अली, सैयद साबिर और मोहम्मद फ़हीमुद्दीन का भी शुक्र अदा करता हूं कि वो इस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में चलाए। और साथ में मैं तमाम स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस वालों का भी शुक्र अदा करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त देकर हमें डेटा प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स का।